Hello everyone, good morning. Welcome to Literature Vidya. I am Ankita, and the topic that we are going to study today is an individual very important in the field of Russian formalism, and he is Roman Jakobson. Roman Jakobson is said to be the founder of the Parag school, right? Roman Jakobson is said to be the founder of the Parag school, and Parag school was founded in the year 1920. और ये पराग स्कूल अपने ऑप्टिमल वर्किंग पे था फ्रॉम द ईयर 1920 टू द ईयर 1930, क्योंकि रशियन फॉर्मलिज्म भी अपने पीक पर इसी टाइम पर ही था, 1920 टू 1930. बाद में 1930 में द मूवमेंट वाज क्लोज्ड बाय पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि सोवियत यूनियन के लोगों को ये लगने लग गया था कि जो हमारा रशियन फॉर्मलिज्म मूवमेंट है वो एंटी मार्क्सिस्ट मूवमेंट है. दैट इज व्हाई दे प्रेशराइज्ड देम टू शट द मूवमेंट डाउन. ओके. Now, the Roman Jakobson is associated to the field of structural linguistics. He is a very important structural linguistic. Okay. And he has given us a concept of the metaphor and metonymy. किसका concept दिया है इसने हमें? He has given us the concept of the metaphor and metonymy. ये question UGC NET exam और बहुत सारे set exams में constantly and repeated mode पे पूछा गया है. So you have to remember this. कि अगर पूछा जाए मेटाफर और मेटोनिमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सो इट इज गिवन बाय द स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक रोमन जेकबसन. ओके. Now, Roman Jakobson was a Russian linguist who developed a revolutionary new technique for the analysis of linguistic sound system. So he is associated with forming new techniques in the sound system. And while he was doing this, there was another individual who was helping Roman Jakobson work with the sound system. And who is the other individual? The other individual is Nikolai Trubetskoy. Can you see this? This is a Russian name. Okay. So Nikolai was the individual who was helping Roman Jakobson work with the sound systems. Okay. So you have to remember it is Nikolai who was helping Roman Jakobson work with the sound systems. Okay. So any question come that who revolutionized the sound system, you have to be clear that it is Roman Jakobson. Okay. In effect founding the modern discipline of phonology, and he founded the discipline of phonology. Okay. Now, Roman Jakobson had dealt with the aphasics, right? Who are aphasics? Aphasics वो लोग होते हैं जिन लोगों को लैंग्वेज पे कमांड करने में डिफिकल्टी होती है, right? Those are the people who are aphasics, and hence Roman Jakobson worked with the aphasics, people who face difficulty to use language, right? And after the keen observation of the aphasics, he developed the theory of language use. Okay? तो लैंग्वेज की थियोरी, साउंड सिस्टम से एसोसिएटेड नई टेक्निक, ये सब जो थी ये हमारे स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक रोमन जेकबसन का जोन ऑफ वर्किंग था. ओके. नाउ ही हैज टॉक्ड अबाउट टू मेजर रेटोरिक फिगर्स. ओके. दैट इज अ मेटाफर एंड अ मेटोनिमी. दो मेजर रेटोरिकल फिगर्स के बारे में इसने बात किया है, एक है मेटाफर और एक है मेटोनिमी. ठीक है. अब ये जो दोनों टर्म है, या तो मेटाफर या मेटोनिमी, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूशन के काम आती है. मतलब एक टर्म को हटा के तुम उसकी जगह एक रेलेवेंट न्यू टर्म प्लेस कर देते हो, है ना. यू सब्स्टिट्यूट द मेन टर्म विद अ रेलेवेंट टर्म. दैट इज डन इन बोथ मेटाफर और मेटोनिमी. सब्स्टिट्यूशन होता है मेन टर्म का, है ना. अब मेटोनिमी क्या होती है? हमें मेटाफर तो पता है. मेटाफर तो होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, है ना. दैट जैसे ही इज अ लायन, राइट, दिस इज मेटाफर बिकॉज हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो मेटाफर हो गया. मेटोनिमी क्या होता है? मेटोनिमी जो होती है जब हम पार्ट को होल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. लाइक हम कहें दैट the papers were signed by Rashtrapati Bhavan. Okay, so here I am replacing the President of India with a larger connotation, that is Rashtrapati Bhavan, because Rashtrapati Bhavan is indicative of the President of India. Okay, so that is metonymy. Okay, when a part, the President of India, is substituted for a whole, that is Rashtrapati Bhavan. Okay, that is metonymy. I hope you are clear with the concept of metaphor or metonymy. Okay, like order issued by Rashtrapati Bhavan, right? ये क्या है? ये whole है, and this whole is used for a part, that is the President of India. So जब part जो होता है that is substituted for a whole, that is metonymy. Okay, and hence ये जो concept है हमारा metaphor और metonymy का, it works on the principle of selection and combination, right? तो हम कहते हैं कि selection और combination, पहले select करना और फिर देखना कि क्या वो सेंटेंस में प्रॉपर्ली कॉम्बाइन हो रहा है. डज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस स्टिल रिमेन्स द सेम, राइट? सो रोमन जेकबसन सेज दैट इट इज सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन जिसके ऊपर हमारी लैंग्वेज चलती है. सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन आर टू वेज ऑफ लैंग्वेज ऑपरेशन. ओके.
नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे हम कहते हैं आई लिव इन अ हाउस, मैं घर में रहता हूं। तो अब हाउस जो है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं केव के साथ या फिर शेल के साथ, है ना, क्योंकि आई लिव इन अ केव। A house can be compared to a cave और a house can be compared to a shell। अगर बहुत छोटा सा घर है तो हम ये कह सकते हैं a house can be compared to a shell। पर अगर काफी डिसेंट घर है तो हम house can be compared with a cave। तो हम house को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं with cave और with shell, right? This we are taking from the vertical list। मतलब vertical list का क्या मतलब होता है कि ये पैराडिग्मेटिक है नेचर में, पैराडिग्मेटिक है नेचर में, राइट? पैरा की फॉर्म में ऐसे, इट इज पैराडिग्मेटिक इन नेचर, ओके। और ये जो होता है पैराडिग्मेटिक इन नेचर, दिस इज मेटाफर। वाई हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हम कोई होल को पार्ट के लिए नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे, हम डायरेक्ट कह रहे हैं ही लिव्स इन अ केव, ठीक है, या फिर आई लिव इन अ शेल। तो जब ऐसा फॉर्म ऑफ कंपैरिजन हो फ्रॉम दी वर्टिकल लिस्ट, रिमेंबर ये क्वेश्चन पूछा क्या है, वर्टिकल लिस्ट का क्या मतलब होता है कि वो पैराडिग्मेटिक है नेचर में, है ना। पैराग्राफ से याद रख लो, पैराग्राफ ऐसे चलता है तो वो वर्टिकल होता है तो पैराडिग्मेटिक इन नेचर। और पैराडिग्मेटिक क्या होता है? मेटाफर। हम उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो हम वर्टिकल लिस्ट में कोई भी उठा के वहां डाल सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर मेटाफर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द वर्टिकल लिस्ट, दैट इज पैराडिग्मेटिक, ओके। देन तो और जो हमारा मेटोनमी होता है वो क्या होता है? वो होता है सिंटैग्मेटिक, क्योंकि वो हम हॉरिजॉन्टल लिस्ट से लेते हैं, है ना। सिंटैग्मेटिक, हाउ डू यू रिमेंबर व्हाट इज सिंटैग्मेटिक? एस, सिंटैग्मेटिक। फिर याद रखो एस से क्या है? सोना। कैसे सोते हो तुम? ऐसे। तो ऐसा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, है ना। तो सिंटैग्मेटिक याद रखो इज अ हॉरिजॉन्टल थिंग, और वो क्या है? मेटोनमी। मेटोनमी हॉरिजॉन्टल उसमें ही होती है। ऑर्डर्स इशूड बाय राष्ट्रपति भवन। अब ये राष्ट्रपति भवन इंडिकेटिव ऐसे है ना, लाइक दिस, सो दिस इज सिंटैग्मेटिक, ओके। और ये जो है दिस इज पैराडिग्मेटिक, ओके। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडिग्मेटिक एंड सिंटैग्मेटिक। अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी कॉन्सेप्ट में, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर कोई और टॉपिक में भी क्लैरिटी नहीं है, सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई एंड मेक यू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड with Roman Jacobson. So, poetic language for Jacobson is use of both selection and combination, है ना। तो poetic language क्या है? पहले select करो फिर उसका proper combination देखो। So selection and combination is a proper usage of a poetic language, है ना, to produce equivalence। इक्विवेलेंस मतलब नहीं बदलना चाहिए उस चीज का, ऐसे नहीं कि कोई वर्ड है तुम कुछ भी जोड़ देते हो उसका पूरा मतलब ही डिस्ट्रक्ट हो जाता है। सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन तुम्हें इस प्रकार से करना है कि इट प्रोड्यूसेस इक्विवेलेंस, मतलब नहीं बदलना चाहिए उस पूरे सेंटेंस का, ओके। नाउ Jacobson, ordinary everyday language is used for communication and poetry is a special and unusual mode of communication। तो अब ये वही जो हमारा रशियन फॉर्मुलिस्ट या जो हमारे न्यू क्रिटिक्स कहते आए हैं वही पॉइंट ये भी कह रहा है कि ऑर्डिनरी एवरीडे लैंग्वेज जो है उसका काम होता है कम्युनिकेशन करना, पर जो पोइट्री है दैट इज नॉट अ ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इट इज अ स्पेशल एंड अनयूजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसका फंक्शन कैसा है? उसका एस्थेटिक फंक्शन जो है दैट इज ग्रेटर, ओके। अब let's come on to the third contribution that he has given, that is model of communication। this is very very important, okay। रोमन जेकब्सन ने हमें दिया है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अभी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो रोमन जेकब्सन का मॉडल पढ़ने से पहले हम एक बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, राइट। तो अब बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में एक एड्रेसर होता है। एड्रेसर कौन होता है? जो मैसेज भेजता है। मान लो कोई बॉयफ्रेंड हमारा एड्रेसर है, वो मैसेज भेज रहा है, ठीक है। फिर एड्रेसी कौन होगी? एड्रेसी होगी उस बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड, है ना, ठीक है। उसके बाद में अब एक तो मैसेज भी होगा, उसके बाद में मैसेज होगा, तो एक एड्रेसर होगा, एक मैसेज होगा और एक एड्रेसी होगा, ठीक है। उसके अलावा एक कॉन्टेक्स्ट भी होगा, मतलब किस भाषा में भेजी गई है वो, राइट, किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है मैसेज को भेजने में, राइट, किस फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया है, ऑडियो भेजा है उसने उसको, वीडियो कॉल करी है, या फिर वीडियो नोट भेजा है उसको, या फिर रिटन फॉर्म में भेजी है उसको, राइट। तो वो मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट है हम दोनों के बीच में। और कोड क्या होता है? कोड इज अ रिटन थिंग, राइट, ओके। तो ये सब चीजें होती हैं एक नॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल में। एक एड्रेसर होता है, एक मैसेज होता है, एक एड्रेसी होता है, फिर एक कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब लैंग्वेज होती है, फिर होता है कि एड्रेसर अपनी एड्रेसी को, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को किस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके मैसेज भेज रहा है। वो ऑडियो भेज रही है, मतलब वो ऑडियो भेज रहा है, या फिर मे बी वो सीधा वीडियो भेज रहा है,
समझ रहे हो? या फिर मे बी वो एक फॉर्मल वे में ईमेल लिख रहा है ब्रेकअप, है ना? तो आई होप यू आर क्लियर नाउ। हमारे इन सब 6 जो इंपॉर्टेंट वो है इन द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा एड्रेसर, हमारी एड्रेसी, हमारा कॉन्टेक्स्ट, फिर जो मैसेज भेजा जा रहा है, फिर किस टाइप का कॉन्टैक्ट यूज किया जा रहा है, और कोड क्या है, राइट? कोड इज राइटिंग, यस, ओके। अब इसी चीज को एक बेस बनाकर रोमन जेकबसन ने भी एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया है। सो लेट्स लुक एट दैट। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो अब रोमन जेकबसन क्या कह रहे हैं, जिसको हम एड्रेसर कह रहे हैं या फिर बॉयफ्रेंड कह रहे हैं, वो रोमन जेकबसन इसको क्या कह रहे हैं, इमोटिव। मतलब वो भाई अपने इमोशंस को शेयर कर रहा है, तो उसने उसका नाम क्या रख दिया, इमोटिव, ठीक है? तो हमारे रोमन जेकबसन साहब ने उस बॉयफ्रेंड का, क्योंकि वो अपने इमोशंस को शेयर कर रहा है, उसका नाम क्या रख दिया, इमोटिव, ठीक है? अब वो गर्लफ्रेंड जो है वो क्या कर रही है, वो उन इमोशंस को रिसीव कर रही है ना? वो रिसीव कर रही है, तो उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया कोनेटिव। वो उन इमोशंस को कलेक्ट कर रही है अपने पास, तो उसको क्या बोल दिया, कोनेटिव, ओके। उसके बाद में जो मैसेज, जो इमोशन उसने सेंड किया या जो मैसेज उसने सेंड किया है, राइट, वो एक मे बी एक रोमांटिक मैसेज हो, तो उसने उसको क्या भेजा है, पोएटिक। पोएटिक क्या होता है उसके हिसाब से, मैसेज, मैसेज इज पोएटिक। तो उसने मैसेज की टर्म को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, पोएटिक। तो एक इमोटिव जो हमारा एड्रेसर है, फिर कोनेटिव जो हमारी एड्रेसी है, फिर जो मैसेज है उसको क्या बोला उसने, पोएटिक, ओके। उसके बाद में किस लैंग्वेज में भेजा, दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट। तो उसको इसने क्या बोला, तो हमारे रोमन जेकबसन ने बोला कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंशियल। रेफरेंशियल इज द कॉन्टेक्स्ट, की मैसेज का रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, राइट? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट टू द मैसेज, ओके। देन व्हाट फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑडियो नोट भेजा है, वीडियो नोट भेजा है, फॉर्मल राइटिंग में भेजा है, राइट? तो फैक्टिक, फैक्टिक क्या होता है, कॉन्टैक्ट, किस मोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया है, दैट इज फैक्टिक। और कोड को क्या बोला है उसने, मेटालिंगुअल, ओके। सो जहां पर एक बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने एड्रेसर, एड्रेसी, कॉन्टेक्स्ट, मैसेज, कॉन्टैक्ट और कोड का इस्तेमाल किया है, वहीं रोमन जेकबसन ने इमोटिव, कनोटिव, रेफरेंशियल, पोएटिक, फैक्टिक और मेटालिंगुअल का इस्तेमाल किया है। रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। I hope you're clear with the model of communication now. Let's move forward. And here we talk about that Roman Jacobson ne also announced that phonemes, the smallest unit of speech sound, right? He says phonemes is the smallest unit of the speech sound, right? That distinguishes one word from another, okay? तो रोमन जेकबसन कहते हैं कि जो फोनीम है वो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीच साउंड का, ओके? और यही है जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिस्टिंग्विश करता है, ओके? नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ हिज वर्क्स that were written by Roman Jacobson. तो सबसे पहला उसने लिखा है चाइल्ड लैंग्वेज, aphasia and phonological universals, right? चाइल्ड लैंग्वेज, aphasia and phonological universals. ये जो वर्क है ये उसने कब लिखा है, when he was working with the aphasics, right? और जब उनके साथ काम करते हुए he found out or he coined the theory of language, right? उस वक्त उन्होंने लिखा है चाइल्ड लैंग्वेज, aphasia and phonological universals, okay? Then he has written on linguistic aspects of translation. Then the sound shape of language, right? He has been constantly talking about sound, about language, right? About phoneme, phonological structures, right? So he's written the sound shape of language. Then verbal art, verbal sign and verbal time. Remember this work. Verbal art, verbal sign and verbal time, okay? Then fundamentals of language, language in literature and Russian epic studies, okay? Since he was a Russian formalist, he has also worked with Russian epic stories, okay? Remember the works, child language, aphasia and phonological universals, on linguistic aspects of translation, the sound shape of language, verbal art, verbal sign, verbal time, fundamentals of language, language in literature, Russian epic studies, okay? I hope you are clear now with Roman Jacobson. So here we wrap up our session. See you in the next class. If you like the session, please hit the like button, give your important feedback in the comment section, share the video. See you in the next class. Work hard.